بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی لاہور آمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، مریم اورنگزیب اور دیگر وزراء نے پرتپاک استقبال کیا۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ غزہ کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کو سراہتے ہیں۔ پاکستان میں آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ پاکستان کے لوگوں میں ایران کے ساتھ خاص وابستگی پائی جاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی اپنے دورہ پاکستان کے دوران لاہور پہنچے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے معزز مہمان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر سینیٹر پرویز رشید، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری، شجاع الرحمان، صوبائی وزراء سلمان رفیق، بلال یاسین، چودھری شافع حسین، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس اور ایرانی قونصل جنرل مہران مواہد فرز سمیت دیگر حکام موجود تھے۔ ایرانی صدر نے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ترجمان نے ایرانی صدر کی گاڑی میں سوار ہونے سے قبل کامران لاشاری کا ان سے تفصیلی تعارف کروایا۔ ایرانی صدر نے دوران گفتگو ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری کا ہاتھ تھامے رکھا۔ ترجمان نے کامران لاشاری کی لاہور کے حسن کو برقرار رکھنے، ورلڈ سٹی اور پنجاب کے کلچرل کو فروغ دینے کے لیے خدمات سے متعلق آگاہ کیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آ کر اجنبیت کا احساس بالکل نہیں ہوا۔ دونوں ملکوں کا رشتہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ علامہ اقبال کی شاعری ایران اور پاکستان کے تعلقات میں پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے۔ غزہ سے متعلق اصولی موقف پر پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ نام اقبال همواره برای ما الهام بخش، نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگار، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود۔ ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سینس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا، جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی، وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے، اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے۔ با درود به همه مردم پاکستان، به ویژه مردم عزیز لاہور، اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں، اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہل لاہور پر میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ دلهای ما همیشه کنار یکدیگره، ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گورنر ہاؤس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور خاتون اول سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور خاتون اول جمیلہ علم الہدا کا لاہور آمد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پاک ایران دوستی کی تاریخ اشروں پر محیط ہے۔ ایران کے ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے اقتصادی منصوبوں پر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ صنعتی ترقی کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر کو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی طرف سے پرتکلف زہرانہ دیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی آڈیٹوریم میں فیکلٹی ممبران اور طلباء سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ علم و ہنر اور سائنس و ٹیکنالوجی پر خصوصی توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان اور ایران علم و ہنر کے جدید مراکز اور علوم و فنون کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی سمیت پروفیسرز اور طلباء کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ دورہ لاہور مکمل کرنے کے بعد ایرانی صدر خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی روانہ ہوئے۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں تقرر اور تبادلے، ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق کو تبدیل کر دیا گیا۔ اکرام الحق ڈائریکٹر جنرل پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی تعینات کر دیے گئے۔ ڈی جی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سائرہ عمر کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اعتزاز اسلم مارچ کو ڈپٹی کمشنر ساہیوال کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ اہم تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق کو تبدیل کر دیا گیا۔ اکرام الحق ڈائریکٹر جنرل پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی تعینات کر دیے گئے۔ ڈی جی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سائرہ عمر کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اعتزاز اسلم مارچ کو ڈپٹی کمشنر ساہیوال کا اضافی چارج بھی سونپ دیا گیا ہے۔ بارشیں برسانے والے نئے نظام نے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں اپنے قدم جما لیے ہیں۔ لاہور میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ آج سے 29 اپریل تک وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔ ماہ اپریل کے دوران بارشیں برسانے والے سسٹمز کی تسلسل کے ساتھ آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اپریل کے دوران بارشوں کی یہ صورتحال کافی غیر متوقع قرار دی جا رہی ہے کہ بارشیں برسانے والے ایک نئے نظام نے پنجاب کے بیشتر علاقوں
इलाकों में कदम जमा लिए हैं। नए निजाम के बायस 29 अप्रैल तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। लाहौर में भी वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की तरफ से पेशगोई की गई है कि बारिशों के दौरान झक्कड़ चलने का इम्कान भी मौजूद है, जिसके बायस शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास का कहना था 26 से 29 अप्रैल तक लाहौर में तेज बारिशें मुतवक्का हैं, जबकि मई के आगाज में भी बारिशें जारी रहेंगी। अब भी मौसम काफ़ी खुशगवार है और कल रहेगा। उसके एक आध दिन के वक्त के बाद 26 तारीख से फिर बारिशों का एक और सिलसिला जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। 27, 28 और 26 के इन दिनों में लाहौर में एक अच्छी बारिश होगी, मौसम और खुशगवार हो जाएगा और इस तरह खुशगवार मौसम के साथ अप्रैल का एंड होगा। दूसरी तरफ सूरत हाल के पेश नज़र PDM में पंजाब ने काम को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। सुहेल कैसल, लाहौर न्यूज़। दर्जा हरारत के साथ साथ ठंडे मशरूबात की फ़रोख्त में भी इजाफा होने लगा है। मिकलर रोड पर मशरूबात की दुकानों पर रश। शहरी कहते हैं मशरूबात गर्मी से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी बताइए। और जी बिल्कुल, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही ठंडे मशरूबात की फ़रोख्त में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मकलोर रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जो ठंडे मशरूबात हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं और मशरूबात की दुकानों पे रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आप लोग जानते ही हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम होता है, जाना और तो इस वजह से इंजॉय कर रहे हैं हम भी, आप भी इंजॉय करें गर्मियों को। और बेहतरीन ज़रिया है मशरूबात, ताकि आप गर्मी से बचने का बेहतरीन ज़रिया है मशरूबात। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा शरबत पी रहे हैं? बस एंजॉय करने आए हैं, इस वजह से पी रहे हैं, गर्मी से बच रहे हैं। शरबत कौन सा? ये गर्मी के अंदर जो है और ठंडे मशरूबात पिए जा रहे हैं, कौन सा शरबत पी रहे हैं और आगे का क्या प्लान है? आइसक्रीम का भी प्लान है? नहीं, बस शरबत पी के हमने जाना है हार और तो इंजीनियरिंग करने, बस थोड़ा सामान लेना, फिर वापस यूनिवर्सिटी जाना है। आज बिल्कुल बाहर निकले हैं थोड़ा सामान लेने के लिए और गर्मी भी आज ज़्यादा रही, जिसकी वजह से बचने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल किया जा रहा है। नौजवानों से हमारी बात हो रही थी, जिनका कहना था कि गर्मी के अंदर ठंडे मशरूबात मुफीद हैं। जी शुक्रिया शाहजेब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खाद बनाने वाली कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र ने नई खाद मुतारिफ करवा दी। FFC की सीनियर मैनेजमेंट ने फीता काट कर सोना बॉर्न इन DAP खाद का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क की सबसे बड़ी खाद बनाने और तरसील करने वाली कंपनी फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड का शानदार इकदाम। FCC की जानिब से फसलों की बेहतर नशोनुमा के लिए नई खाद सोना बोरान DAP मुतारिफ करवा दी। FFC मार्केटिंग ऑफिस लाहौर में लॉन्चिंग तकरीब के दौरान शुरका को सोना बोरान DAP की TVC एड भी दिखाई गई। तकरीब के शुरका को आगाही दी गई कि सोना बोरान DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस समेत 0.1% बोरान की इजाफी ताकत भी मौजूद है। बोरान की इजाफी मिकदार के बायस फसल की क्वालिटी मजीद बेहतर होगी। ग्रुप जनरल मैनेजर मार्केटिंग FFC अतर जावेद का कहना है कि मुल्क की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी FFC अपने कयाम से ही किसानों को मियारी खादें और ज़रूरी खिदमात फराहम करके मुल्क की ज़रूरी तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की 60% ज़मीनों में बोरान की कमी है। सोना बोरान DAP पाकिस्तान की पहली वैल्यू एड DAP खाद है। पाकिस्तान की 60% जो ज़मीनें हैं उसमें बोरान की कमी है और उन 60% ज़मीनों में बोरान की कमी की वजह से तकरीबन हम 9 से 10% जो है जो पैदावार है वो कम ले रहे हैं इस वक्त। जैसे जैसे पैदावार हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, मुल्क में आबादी बढ़ रही है, ज़मीन नहीं बढ़ रही, इसी ज़मीन से हमें ज़्यादा पैदावार हासिल करनी है और उसका सिर्फ एक ही हल है कि हम प्रोडक्ट्स जो यूरिया DAP है इसमें वैल्यू एडिशन करें। FFC पाकिस्तान की ज़राअत की तरक्की और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की हसूल के लिए मुस्तक़बिल में भी नई खादें मुतारिफ़ करवाने का अज़्म रखती है। गंदम की सरकारी ख़रीदारी का ये मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम के बहरान पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गंदम खरीदारी के हदफ पर नज़रसानी का ऐलान मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। सरप्लस दरामदी गंदम बन गई हुकूमत और किसानों के लिए बड़ी परेशानी। गंदम खरीदारी हदफ पर वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आलम मरियम नवाज से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ निगरान दौर में गंदम की गैर ज़रूरी दरामद की तहकीकात का हुक्म दे सकते हैं, जबकि गंदम खरीदारी के सरकारी हदफ पर नजरसानी का ऐलान भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक निगरान वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस 24 लाख टन शॉर्टफॉल का जवाब बनाकर गंदम की गैर ज़रूरी दरामद शुरू की। 31 मार्च तक 32 लाख 20 हज़ार टन गंदम इम्पोर्ट हुई। 8 लाख
लाख टन सरप्लस गंदम मौजूद और फरोख्त इंतहाई कम होने से इम्पोर्टर्स मुश्किलात का शिकार। 15 रोज के दौरान लाहौर में आटे की एक्स मिल कीमतों में 1600 रुपए की कमी, 20 किलो आटे के थैले का एक्स मिल रेट 1900 रुपए हो गया। दूसरी जानिब महकमा खुराक को 20 लाख टन गंदम खरीदारी के लिए कैश क्रेडिट लिमिट भी जारी नहीं हुई। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने सबको मुतासिर किया है। शहरी महंगाई से तंग, मजदूर और ताजिर तबके के लिए बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया। फहद अमीन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। अवामी नुमाइंदों को ऐवानों में बैठे 2 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन बिजली, गैस, LPG और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना आ सकी। कीमतों में कमी के बजाय मुसलसल इजाफे से आवाम परेशान, मजदूर और दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी को भी तरस गया। शहरी कहते हैं गैस, बिजली के बिल अदा करें तो बच्चों को खाना खिलाना मुमकिन नहीं। माहाना 20 से 25 हजार कमाते हैं, गैस बिजली के बिल इससे भी ज्यादा आ जाते हैं। हुकूमत महंगाई कम करने के दावे करके आई, मगर बुनियादी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया। आदमी जो है बहुत पिस गया है महंगाई की वजह से, ना उसके पास रोटी के लिए पैसे हैं, ना खाने के लिए अच्छी खुराक है, कोई चीज़ नहीं है। इलेक्शन भी गुजर गए हैं। आलम बाला से दरख्वास्त है कि महंगाई में कंट्रोल किया जाए, चीज़ें नीचे लेकर आई जाएँ और ताकि सबको रिलीफ मिल सके। जिसके घर बच्चे भूखे लेटे हुए हैं, सोए हैं, वो घर मांग रहे हैं मुझे कपड़े दो या मुझे खाने को दो, वो कहाँ से देगा? महीने की आमदन है 20,000 रुपया, 15,000 रुपया या 25,000 रुपया, वो अगर रेंट पे रहता है तो वो कैसे पूरा करेगा? शहरियों का कहना है कि सिर्फ रोटी की कीमत में 4 रुपए कमी से आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी करे।